Hi everyone, I hope you are doing absolutely well. My name is Gautam and welcome back to your CFA prep. So sir, finally we have come out with a video so that can help you to take a decision. Are you eligible or are you not eligible to pursue the CFA program? And a lot of queries were being asked, a lot of students were reaching out. So I thought why don't I curate a specific video जहाँ पे आपके बारे में आपको पता चल जाएगा कि are you eligible to pursue the CFA program. तो यहाँ पे we'll discuss everything. What are the eligibility criteria, requirements, what is the fee structure, overall structure क्या होता है, कितने levels होते हैं, everything end to end, क्या career prospects है, क्या आपको CFA pursue करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. But we'll take it धीरे धीरे step by step. इस वीडियो में we will discuss कि sir what are the eligibility requirements for you to be able to pursue the CFA program. This program, this degree in itself opens the world की opportunities for you. But for that you should understand are you eligible or not, and for that very reason I am here with this video. I hope this acts as a one-stop solution for you कि after today in case you have any video you can come back to this video, you can pin down a comment कि this is the video that helped you understand are you eligible or not. Directly start करेंगे. I'll not take a lot of time. Sir, what are the eligibility requirements for pursuing the CFA program? CFA प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए स्पेसिफिकली जब आप लेवल 1 से स्टार्ट करो, देयर आर 3 लेवल सक्सेसिवली दैट यू हैव टू परस्यू. लेवल 1, देन लेवल 2, देन लेवल 3. इसकी भी डिस्कशन आई विल डू इन डेप्थ. बट इन केस यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट फॉर द फर्स्ट लेवल, सर दैट इज योर लेवल 1. उसके लिए व्हाट आर योर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट? सबसे पहले सर यू शुड हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री. सर इज इट नेसेसरी कि आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है दैट शुड बी समथिंग इन अकाउंटेंसी और फाइनेंस और समवट रिलेटेड? नॉट एट ऑल सर. It can be anything, be it arts, be it political science, be it history, be it geography, be it engineering, be it accounting, finance, कुछ भी है. If you have done your bachelor's, you are eligible to pursue the CFA program. You are eligible to sit for your CFA level 1 examination. समझ में आया? और sir, if you have not done your bachelor's, what is the second thing? If you want to give your level 1, if you're wanting to give your level 1 examination, you can give it 2 years before your graduation. Sir, इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाऊं, सर यू आर परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, विच इज अ 0 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, a 3-year degree, correct? You can pursue your CFA level 1 exam once you come in your second year. Once you come in your second year, you can pursue your level 1 examination. क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली है. एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है कि 2 years before your graduation you can apply for your CFA level 1 examination. So that is very very important. Only when 2 years are there, 2 years sir, first year एंड सेकेंड ईयर, यहाँ पे सर आप ग्रेजुएट करोगे, करेक्ट? सो यू कैन ओनली स्टार्ट यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. आप यहाँ पे व्हेन यू कम इन योर सेकेंड ईयर यू कैन सिट फॉर योर CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन. समझ में आया? अगर सर आपकी डिग्री इज अ 4-year डिग्री, जैसे इंजीनियरिंग, आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज परस्यूइंग इंजीनियरिंग, सर उनकी तो 4 years की डिग्री होती है. तो सर ये रहा आपका फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकेंड ईयर, ये रहा थर्ड ईयर, ये रहा फोर्थ ईयर, एंड यहाँ पे आप ग्रेजुएट करोगे, करेक्ट? तो व्हेन विल यू बी एलिजिबल टू सिट फॉर योर CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन? सर यू कैन सिट इन योर थर्ड ईयर और यू कैन सिट इन योर फोर्थ ईयर, 2 years बिफोर योर ग्रेजुएशन. समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? तो देर इज अ वेरी बिग मिथ या अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट एवरीवन आस्क्स कि कैन वी स्टार्ट परस्यूइंग अ CFA program while we are in college? Absolutely yes, you can pursue. I would suggest please go. You will get the first mover advantage and there is nothing better than using your time to your advantage. समझ में आया? सर अगर आपने ये क्लोज कर दिया इन दिस ईयर इटसेल्फ, 2 years बिफोर आपने स्टार्ट किया एंड आपने सर फर्स्ट ईयर में ही क्लोज कर दिया अपना CFA लेवल 1, तो यू कैन ऑल्सो डू योर CFA लेवल 2. बट CFA लेवल 2 के लिए क्या कंडीशन है कि यू शुड बी 1 year बिफोर योर ग्रेजुएशन. तो यू कैन गिव योर CFA लेवल 2 1 year बिफोर योर ग्रेजुएशन. तो इफ इट इज अ 4-year डिग्री, तो इन योर फोर्थ ईयर, इन योर लास्ट ईयर व्हेन यू आर सिटिंग फोर्थ ईयर में, यू कैन अप्लाई एंड यू कैन सिट फॉर योर लेवल 2. सिमिलरली अगर सर आपका 3 year का डिग्री है, तो इन योर थर्ड ईयर यू कैन सिट एंड यू कैन गिव योर CFA लेवल 2 एग्जामिनेशन. Can we give our CFA level 3 while we are in college? No sir, you cannot give your CFA level 3. You can give your CFA level 3 only after your graduation, only after your bachelor's degree. समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? और सर या तो ये है या ये है, और वॉट एवर. इफ यू हैव नॉट परस्यूड कॉलेज बाय एनी रीजन, जैसे काफ़ी CA स्टूडेंट्स डू नॉट परस्यू कॉलेज, दे आर जस्ट क्लियरिंग देयर CA एग्जामिनेशन. सर अगर 4000 आवर्स ऑफ एनी वर्क एक्सपीरियंस आपने कर लिया, आपने परस्यू किया, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, और हायर एजुकेशन दैट यू हैव अक्वायर्ड over 3 years, over minimum
3 years अगर आपने acquire किया है तो you are eligible to sit for your CFA level 1 examination। समझ में आया? You are eligible to pursue the CFA program। सर इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आप कॉलेज नहीं गए हो, कैन वी नॉट सिट फॉर अ लेवल 1 एग्जाम? सर यू कैन सिट प्रोवाइडेड आपके 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्स होना चाहिए। सर 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्स सर किस फील्ड में होना चाहिए? सर किसी भी फील्ड में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली फाइनेंस में, एनीथिंग। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में हो, आपने जो भी जिस भी बैकग्राउंड में आपने काम किया है, यू आर एलिजिबल प्रोवाइडेड यू हैव कंप्लीटेड 4000 आवर्स इन 3 years। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? सर वेरी वेरी स्पेसिफिक। वैसे तो बोलते हैं कि वी शुड परस्यू इट अगर फाइनेंस का वर्क एक्सपीरियंस है। सर फाइनेंस का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है व्हेन यू आर वांटिंग टू गेट अ चार्टर। व्हेन यू वांट अ चार्टर या जो डिग्री होती है जिस पे लिखा होगा कि यस यू हैव कंप्लीटेड योर सीएफए की डिग्री, उसके लिए यू नीड फाइनेंस का वर्क एक्सपीरियंस, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो फाइनेंस रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस हम नीचे पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो व्हेन यू आर वांटिंग टू परस्यू, सर ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ फाइनेंस जॉब, यू डोंट हैव अ फाइनेंस डिग्री, इसलिए तो आप परस्यू कर रहे हो। समझ में आया? तो देयर इज नो कंपल्शन दैट यस यू नीड टू हैव अ फाइनेंस डिग्री और अ वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। समझ में आया? बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये जो है इंटर्नशिप या जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, इट शुड बी पेड, इट शुड नॉट बी अनपेड। ये पेड होना चाहिए, तभी ये 4000 आवर्स में काउंट होएगा। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई क्वेरी? यस सर, नाउ वी आर एलिजिबल टू सिट फॉर आवर सीएफए लेवल 1 एग्जाम। हम बस जाके बैठ जाए, रजिस्टर करके बैठ जाए? सर जाना है, रजिस्टर करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट होगा सर? यू मस्ट हैव अ वैलिड पासपोर्ट। व्हाट यू मस्ट हैव? यू मस्ट हैव अ वैलिड पासपोर्ट बिफोर सिटिंग फॉर योर सीएफए लेवल 1 एग्जामिनेशन, और फॉर दैट मैटर एनी ऑफ योर सीएफए एग्जामिनेशंस भी है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 या और भी कोई एग्जाम्स होते हैं इंस्टीट्यूट के, सीएफए इंस्टीट्यूट के, अदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन या ऑर्डिनेट इन्वेस्टमेंट का कोई भी एग्जामिनेशन होता है विद द सीएफए इंस्टीट्यूट, यू नीड टू हैव अ वैलिड पासपोर्ट। सर वैलिड पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? दैट वैलिड पासपोर्ट का मतलब यही होता है कि वो जो पासपोर्ट है इट शुड नॉट बी एक्सपायर्ड। जो डेट ऑफ इशू या डेट ऑफ एक्सपायरी होता है ना, इट दैट शुड लाई बिटवीन योर एग्जामिनेशन। समझ में? ऑन द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए बस पासपोर्ट। सर पासपोर्ट क्यों यूज करते हैं? व्हाई डोंट दे यूज द पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसे इंडिया में यूज होते हैं? सर दिस इज अ ग्लोबल प्रोग्राम, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल प्रोग्राम, तो दे वांट टू नो दैट आर यू अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एंड व्हाट प्रूव सिटीजनशिप? सर योर पासपोर्ट शोज योर सिटीजनशिप। समझ में आया? ऐसे तो सर अगर हम आधार कार्ड ले लेंगे, पैन कार्ड ले लेंगे, हर एक कंट्री का सर अलग अलग स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होगा, तो रादर देन गेटिंग इनटू दैट निटी ग्रिटीज एंड नुएंसेस, वो उसको साइड करते हैं और वो बोलते हैं कि सर आप एक पासपोर्ट दिखा दो। इफ यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट जिसमें आपका नाम भी सही लिखा हो, कोई देर इज नो डिस्क्रिपेंसी, आपका नाम सही लिखा हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो एक्टिव, एक्टिव मतलब एक्सपायर्ड नहीं हुआ हुआ है, तो यू आर वेल विद इन द रेंज एंड यू कैन सिट फॉर योर सीएफए लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 एग्जामिनेशन जो भी है। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ सकते हैं? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? सेकंड आता है सर, हाउ कैन वी बिकम अ सीएफए चार्टर होल्डर? सर हमें वो डिग्री कैसे मिल सकती है, सीएफए चार्टर होल्डर की डिग्री कैसे मिल सकती है? उसके लिए सर आपको ये 4 बुलेट्स कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 एंड ये 4 बुलेट्स आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आपने ये 4 कंप्लीट कर लिया, आपको सर आपके गरम गरम डिग्री आ जाएगी आपके हाथ में, एंड यू विल बी अ सीएफए चार्टर होल्डर। क्या है सर वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो सर यू शुड क्लियर ऑल द 3 लेवल्स ऑफ योर सीएफए लेवल ऑफ योर सीएफए प्रोग्राम। सर लेवल 1 करना है, लेवल 2 करना है, लेवल 3 करना है सक्सेसिवली। ऑब्वियसली लेवल 1 करोगे उसके बाद ही लेवल 2 कर सकते हो, लेवल 2 करोगे उसके बाद ही लेवल 3 आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले लेवल 2 करोगे फिर आप लेवल 3 करोगे फिर आप लेवल 1, नहीं, आपको सर स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। समझ में आया? सर इज इट कंपल्सरी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए? बिल्कुल, देयर इज नो कंपल्शन, कोई ऐसा अटेम्प्ट पे बार्स भी नहीं होते हैं। आप जाओ एंड यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन। बाय चांस आपका नहीं हुआ क्लियर, आप सेकंड एग्जामिनेशन दो, नहीं हुआ क्लियर, तीसरी बारी दो, क्लियर हो गया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आप जाओ एंड यू परस्यू द नेक्स्ट लेवल। समझ में आया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, आपके 3 के 3 लेवल्स कंप्लीट होने चाहिए, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए सर? आपके 4000 आवर्स, क्या है इसको मैं रेड में लाइट कर देता हूँ सर, आपके 4000 आवर्स ऑफ फाइनेंस रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस आपको अक्वायर होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये जो भी सीएफए चार्टर होल्डर्स होते हैं या जो सीएफए की डिग्री लेते हैं, इट इज़ अ वेरी डायनामिक डिग्री, इट इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक डिग्री, इट इज़ अ डिग्री दैट यूजेस रियल स्किल सेट। तो द इंस्टीट्यूट ऑल्सो वांट्स टू नो कि सर आपने काम किया है या नहीं किया है, या आप एक एडिशनल डिग्री ही इकट्ठी कर रहे हो दैट विल होल्ड जस्ट डस्ट ओवर योर शेल्फ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो ये डिग्री है इट शुड बी बैक्ड बाय सम वर्क एक्सपीरियंस, एंड वो कितना वर्क एक्सपीरियंस है? 4000 आवर्स। अब सर ये 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस शुड बी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फाइनेंस। सर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फाइनेंस का क्या मतलब है सर? स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फाइनेंस मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फ्रंट ऑफिस, जो फ्रंट बुक कीपिंग वाले लोग होते हैं, बुक लीडर्स जो होते हैं,
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल्स में काम किया हो या प्राइवेट इक्विटी सर, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, या इक्विटी रिसर्च, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। अगर आपका कोई भी काम विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुआ है, इट इज़ रिलेटेड टू सर फाइनेंस, एंड अगर फाइनेंस का आपने कोई भी काम किया, यू आर एलिजिबल फॉर द 4000 आवर्स का मार्क। सर इसमें आपका आर्टिकलशिप काउंट होगा, बिल्कुल आपका आर्टिकलशिप काउंट होगा। आपका इसमें अगर आपने कोई भी बुक कीपिंग करी है, अकाउंटिंग करी है सर, दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो दैट ऑल्सो गेट्स काउंटेड। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? शैल वी मूव अहेड? उसके बाद सर एडिशनली काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं सर, ये जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है ये कब से काउंट होता है सर? इट कैन बी बिफोर योर एग्जामिनेशंस, बिफोर एग्जामिनेशन लेवल 1 करने से पहले आपने वर्क किया है, सो दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड इन द 4000 का मार्क। सो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब आपने काम किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जब आप कर रहे थे, उसके साथ में यू आर ऑल्सो मैनेजिंग वर्क, तो वो भी आपका ऐड हो जाएगा। एंड सर इवन इफ आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन यू आर वर्किंग टू कंप्लीट दैट 4000 आवर्स का पूरा बजट, तो सर दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड, देयर इज नो बार। समझ में आया? इट इज जस्ट दैट यू हैव टू प्रूव इट दैट हाँ देयर वाज योर प्रिंसिपल जिसने अटेस्ट किया कि एंड अप्रूव किया कि हाँ आपके सर 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्स हो गया है। सेकंड सर, ये जो काम होना चाहिए सर, दिस वर्क कैन बी फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटर्नशिप, एनी टाइप ऑफ वर्क इट कैन बी। अगर आपने फाइनेंस इंडस्ट्री में काम किया है फॉर 4000 आवर्स ओवर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स हो सकता है, 4 ईयर्स, 5, इट इज मिनिमम 3 ईयर्स में आपने काम किया है 4000 आवर्स का, तो सर यू बिकम एलिजिबल। तो वेरी मेनी क्वेश्चन, मेनी पीपल आस्क कि सर हमारा आर्टिकलशिप सर जो हम पहले 3 साल करते थे अब 2 साल हो गया है, तो विल दैट बी कंप्लीट, विल दैट बी काउंटेड? यस, दैट विल बी काउंटेड, बट सर यू नीड टू शो 3 ईयर्स, यू नीड टू शो 3 ईयर्स। तो आपके 2 ईयर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे आर्टिकलशिप में, प्लस यू विल हैव टू शो अनदर ईयर एंड देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट योर चार्टर। समझ में आया? सर ये हो गया है, ये भी डन है, ये भी डन है, हर चीज़ डन है सर। इसके बाद सर यू आर एलिजिबल टू गेट द चार्टर, बट सर वो डिग्री लेने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी फीस पे करनी पड़ेगी। कितनी फीस पे करनी पड़ेगी सर? इस फीस को बोलते हैं एनुअल मेंबरशिप फी, जो आपको CFA इंस्टीट्यूट को देनी पड़ेगी। ये कितनी फीस होती है सर? ये होती है अप्रॉक्सीमेटली $299। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, बट द इंस्टीट्यूट इज़ very sweet and it gives a special concession to people that are living in India। तो हमें सर सिर्फ $159 ही पे करने पड़ते हैं, तो $159 अप्रॉक्सीमेटली 15,100 के आसपास आ जाता है। तो आपको एवरी ईयर ये पे करना पड़ेगा। समझ में आया? एवरी ईयर पे करना पड़ेगा। एंड इनका साइकिल जो रजिस्ट्रेशन का होता है सर जुलाई टू जून होता है, 1 जुलाई टू 30 जून, ये सर इनका रजिस्ट्रेशन वाला साइकिल होता है। यहाँ पे आपको इनको फीस पे करनी पड़ेगी एंड आपको सर एक बहुत बड़ा एक चार्टर मिल जाता है, जो आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस में कहीं भी लगा सकते हो कि येस दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई हैव अ CFA चार्टर। समझ में आया? अब सर काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर मैंने अगस्त में क्लोज किया या नवंबर में क्लोज किया अपना अटेम्प्ट एंड देन मैं CFA चार्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो सर मेरी फीस कितनी लगेगी? सर अप्रॉक्सीमेटली सर ये जो $159 आपको पे करने पड़ेंगे, फिर ये प्रोपोर्शनेट लगेगा। प्रोपोर्शनेट मतलब फॉर जितने महीने यू आर अप्लाइंग उतने महीनों के लिए आपकी फीस लगेगी। तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको हम बस सिंपली बोलते हैं ये लगेगा फॉर द प्रो राटा। प्रो राटा मतलब उसकी प्रो रेटिंग होगी, प्रोपोर्शनेट लोगे फॉर द रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? इसके साथ साथ सर जैसे ही आप इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करते हो, इंस्टीट्यूट का भी ना हर एक कंट्री में देर आर डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस में दे हैव देयर अफिलिएशंस दैट आर कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूट। इंडिया में वी हैव द CFA इंडिया सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी सर? वी हैव द एनुअल मेंबरशिप जो हमें पे करनी पड़ती है टू द CFA इंडिया सोसाइटी। इनको भी सर हमें मेंबरशिप देनी पड़ती है, इनको भी मेंबरशिप फी पे करनी पड़ती है। कितनी पे करनी पड़ती है? हमें पे करनी पड़ती है सर 5000 प्लस 18% की GST हमें पे करना पड़ेगा, थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट, विच कम्स अप टू अ टोटल ऑफ 5900। एंड अगेन सर इनकी भी सर 1 जुलाई टू 30 जून चलता है। एंड अगेन अगर आपने अगस्त में अप्लाई किया या आपने नवंबर दिसंबर कभी भी अप्लाई किया अपार्ट फ्रॉम द साइकिल, तो सर प्रो राटा अलॉटमेंट बोल रहा हूँ मैं, प्रो राटा आपको उतना प्रोपोर्शनेट पेमेंट करनी पड़ेगी फीस की। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई क्वेरी? तो सर ये फीस आपको हमेशा पे करनी पड़ेगी? नहीं सर, इट इज़ मैंडेटरी जस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर व्हेन यू आर रजिस्टरिंग विद द CFA इंस्टीट्यूट, क्योंकि अब आप चार्टर होल्डर बन चुके हो विद द इंस्टीट्यूट, तो सर दे आस्क क्योंकि आप अपने भी लोकल जो सोसाइटी है उसके भी आप एक मेंबर बन जाओ। फर्स्ट ईयर के लिए तो आप बन जाओ, सो दैट यू कम इन द रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ द स्पेसिफिक लोकल सोसाइटी। उसके बाद आपको मेंबर बनना ही नहीं बनना, दैट इज अप टू यू, कोई फोर्स नहीं है, बट सर फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज मैंडेटरी। समझ में आया? तो सर यहाँ तक 3 पॉइंट्स हो गए। एंड लास्ट, टू गेट द चार्टर द इंस्टीट्यूट ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो दैट यू आर अ क्रेडिबल पर्सन। क्रेडिबल पर्सन कहाँ से पता चलेगा? यू आर अ पर्सन ऑफ हाई मोरल एंड अ पर्सन ऑफ वेरी वेरी हाई एथिकल इंटेग्रिटी। ये कहाँ से पता चलेगा सर? उसके लिए उनको लगते हैं 3 रेफरेंसेज। ये 3 रेफरेंसेज कौन होते हैं सर? वही रेफरेंसेज होते हैं जिनके पास चार्टर्स होते हैं। तो 3 अगर चार्टर होल्डर्स है वो अटेस्ट करते हैं कि हाँ ये इस बंदे ने सर 4000 आवर्स का काम कर लिया है,
3 एग्जाम्स जो है सर उसने सक्सेसफुली क्लियर किया है, उसने पेमेंट भी कर दी, सब कर दिया है, अगर वो अप्रूव कर देते हैं, अप्रूव मतलब वो भी यस बोल देते हैं कि यस दिस इज अ पर्सन ऑफ हाई इंटेग्रिटी, हाई मोरल, तो सर द इंस्टीट्यूट अलाउज यू, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं. इट इज जस्ट लाइक अ बैकग्राउंड और अ रेफरेंस चेक. हाउएवर सर यू हैव टू ओनली आस्क फॉर 2 चार्टर होल्डर्स इफ देर इज अ मेंबर, अगर वो जो तीसरा मेंबर है, कोई एक उनमें से एक मेंबर इज अ मेंबर ऑफ द इंडिया सोसाइटी, ऑफ द लोकल सोसाइटी, तो उसमें सिर्फ आपको सर 2 रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी, फिर 3 रेफरेंसेस देने की जरूरत नहीं है. समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 4 बुलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं एक चीज़ बताऊँ, ये एक आपका एक एथिकल कॉन्सेप्ट भी है जो हम पढ़ते हैं इन आर CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन इन वन ऑफ आर स्टैंडर्ड्स की. व्हाट आर योर ड्यूटीज या what should you keep into mind as a CFA institute member or a candidate. ठीक है, तो इसमें तो एक टॉपिक भी हो गया हमारे एग्जाम का. तो दिस आप बोलते हो कि द इंस्टीट्यूट इज वेरी वेरी डायनामिक एंड प्रेगमेटिक इन द वे कि जो भी रियल लाइफ में अप्लाई होता है, सो द इंस्टीट्यूट टेंड्स टू यूज दैट एंड इट मेक्स इट्स करिकुलम या स्ट्रक्चर वेरी वेरी सिमिलर टू दैट. समझ में आया? आई होप दिस एडेड वैल्यू. So now I hope you are very very comfortable and understand if you are eligible for the CFA program, and once you become eligible you complete all the exams, so how can you get the charter. I hope यहाँ तक समझ में आया. I hope you got value. In the next video I'll come out with more such videos जहाँ पे I am explaining more regarding the fees, the structure, what are the career prospects. उसके लिए do share the video, do like the video, do subscribe to the channel, and if you are new to the channel, do share it across with anyone and everyone who is wanting to pursue the CFA program, because the CFA program just opens the world of opportunities for you. ठीक है, this is me Gautam Taneja. I hope this added value. In case this added value, do like the video, share it across, and I will see you in another video very very soon. ठीक है, all the very best. Please take care. Bye bye.